So yeah, अमृता अभी शेयर नहीं करना अपनी। Okay. So I am CA Pinky Kedia, Treasurer of WRC. Want to welcome you all in our today's WOW series, and our topic is breaking the barrier 5 success months, and which will be taken by the CA Amrita Maniar. She is very young chartered accountant. But before that, I want request you to all to put your right hand on your heart for our institute motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतं तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता। So we have with us CA Amrita Maniar as a faculty, and we have CA Divya Trikoti as our coordinator, and both are not from Mumbai, but they have joined us virtually for this WOW series. So thank you, Amrita, to accept our invitation, and Divya to be a coordinator of this program. I want to introduce CA Amrita formally. She is very young, and she is on a mission to add value by creativity, ignity mind, cultivating knowledge and enthusiasm. She is a professor for indirect taxation at final level, GST and strategic management at intermediate level of CA examination of the ICAI. She is a nominated member for CP committee of WIRC. She is appointed as the youngest member of Women Committee of Jalgaon branch of WIRC of ICAI for 23-24 and 24-25. Co-authored a book titled ABC, a Budget Chat 2023 on financial budget. He's MOC for various events, quiz competition, and other events of Vikasa of Jalgaon, and appointed as a mentor for the MOC committee for state level conference of Vikasa of ICAI. She has authored various articles on GST annual return, audit of ICAI publications. She is also merit holder in various examinations like scholarship in 2011-12, mathematics in 2012-13, MTS, NTS, and SW Global, Science Foundation, Hindi Rashtra Bhasha examination, and 3-time gold medalist International Mathematics and International English Olympiad. So with this brief introduction, I want to welcome CA Amrita for this online virtual session on WOW series. And I am very happy because I am a nominee of that Jalgaon branch, and she is from our Jalgaon branch. So it's my proud privilege to welcome her in our WOW series for women member, because we took this topic because women are feeling that they can't break the barriers, and what they will do after sabbatical leaves, and in general environment, women are not so much motivated, and they are not giving they are not receiving that type of support from outside world. So what a young generation thinking about that. So Amrita, over to you. You can please guide us how to break the barriers, and what will be the successful month for that. So over to you, Amrita. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction.
Now Now let's you- start the session. Yes. Good evening, everyone, and welcome to the session. Let's break the barriers and learn 5 secret mantras of success. All are ready? मैडम वो वापस ब्लैंक आ रहा है, वो शेयर किया था, वो डार्क आ रहा है वैसे। अच्छा, एक स्लाइड देखते हैं, अगर फिर भी आता है तो आप मेरे को बताइए, फिर अपन वापस शेयर करके देखते हैं। मे बी थोड़ी देर से हो जाएगा ठीक। नहीं, मेरे यहाँ तो ठीक आ रहा है। मेरे यहाँ पे ठीक आ रहा है। ओके स्लाइड ओके चेंज ठीक करो, है, ठीक है। स्लाइड चेंज करो अमृता। सही या है? या इट्स शोइंग ओके, बट बीच में थोड़े थोड़े पैचेज आ रहे हैं, ग्रे पैचेज आ रहे हैं बीच में। ठीक है। वही अभी आ रहा है क्या? हाँ, ग्रे पैचेज आ रहे हैं। वापिस से एक बार शेयरिंग को स्टॉप करके फिर से करो। ओके। शेयरिंग स्टॉप करो एक बार। हाँ, अभी फिर से शेयरिंग करो। अब सही है? नहीं, अब तो पूरा ही ग्रे हो गया है। मिश्रा जी गाइड करिए उनको। हाँ प्लीज। इज इट विजिबल? नो नो नो। नहीं मैडम, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ वापस। So, thank you for the cooperation. Let's start the session. Let's break the barriers and learn the 5 secret mantras towards success. First mantra is the power of synergy. Let me ask you a simple question before starting the session. 2 plus 2 is equal to what? 4. Incorrect. 5. That additional 1 comes from the power of synergy. What exactly is synergy? Synergy refers to the combined action of 2 or more individuals or entities to produce a greater combined effect than the sum of their separate effects. In short, it is the benefit of teamwork and collaboration. Many a times in the corporate world, we see internal conflicts and tension, office gossiping, cliques matlab forming of small groups and excluding certain members from the group, competition and office politics. But why is this scenario normalized? Why can't working together and uplifting each other be normalized? Kyunki every person has certain special qualities and can bring a set of expertise to the table. So instead of focusing on somebody's flaws, let us focus on their unique characteristic and features. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, जिक्सॉ का एक एक पार्ट लाके सब एक यूनिक आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड पिक्चर में कुछ लोग नीचे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि बाकी लोग उस पे से वॉक कर सके। एट द एंड इन लोग को भी उन लोग हेल्प करेंगे लास्ट में। And lastly, everybody is celebrating the success. So success is the result of everybody's hard work. सिर्फ एक जन का हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होता है सक्सेस, ठीक है? तो फर्स्ट सीक्रेट मंत्रा इज द पावर ऑफ सिनर्जी. Now the question might be, how can we start to implement this synergy in our office culture? First step is by way of active listening. Most of the time, we just listen to speak and this creates a little tension and frustration. So let us start the chain of active listening. एक बार आप किसी का बात सुनेंगे, फिर आप किसी को कुछ बताएंगे तो वो भी आपका बात सुनेंगे, ठीक है? Next step is to inculcate EQ. EQ stands for emotional intelligence.
So let us inculcate EQ while setting the objectives of the team. Emotional intelligence is defined as the ability to perceive, use, understand, and manage emotions. So, emotional health, mental health are also equally important. सिर्फ objectives, आपके goals जो है कंपनी के, उसको पूरा करने के लिए मत सेट कीजिए. Individuals को ध्यान रख के आप goals दीजिए. Third step is by respecting others' ideas and intentions. See, अगर आप किसी का कोई आइडिया सुनेंगे, हो सकता है थोड़ा वियर्ड हो, बट हो सकता है बहुत अच्छा भी हो. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है. वैल्यू द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट विद इन द टीम एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स. Encourage open dialogue where all team members feel comfortable sharing their ideas without fear of judgment. Conflict resolution is the next step. अगर कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में फाइट होता है तो देयर हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टीम जो एनकाउंटर करेंगे ये चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए डायरेक्ट करेंगे. Conflict resolution skills help navigate disagreements and maintain a harmonious team environment. Lastly, feedback. Embrace constructive criticism with an open mind and use it to enhance your collaborative skills. Also, on the other hand, you should criticize constructively. Understood? So, this was the first secret mantra, and that was power of synergy. Let us move forward to the second secret mantra of success. That is, explore your potential. I would like to request you all to get a pen and paper and write your 3 strengths and 3 weaknesses in 5 minutes. Your time starts now. If you want to share, you can share your strengths and weaknesses in personal, and I will not disclose your names. Are you all writing your strengths and weaknesses? All are requested to write their personal strengths and weaknesses on a piece of paper. Thank you.
Are you guys done? Last 10 seconds. अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि we tend to write something in our weakness which is actually our strength. ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि sometimes we are not confident और कभी कभी हमको लगता है we cannot actually do that. एक जन ने अपना वीकनेस शेयर किया है, that is public speaking. But would you believe that एक टाइम पे शाहरुख खान का वीकनेस भी पब्लिक स्पीकिंग था? एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, कपिल शर्मा जिनको आप सभी जानते हैं, इनका इंग्लिश पे कमांड नहीं था उतना, बट अभी ये नेटफ्लिक्स पे अपना शो फीचर कर रहे हैं जो मोर देन 150 कंट्रीज में रन हो रहा है. Now there is a basic difference in these two examples, and that is first में शाहरुख खान को लगता था कि ये उनका वीकनेस है जब तक उन्होंने ये चीज को एक्सप्लोर नहीं किया था. ठीक है. सेकंड में कपिल शर्मा को पता था इंग्लिश स्पीकिंग उनका वीकनेस है, बट उन्होंने उसी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया. ठीक है. तो वी कैन ड्रॉ 3 conclusions from this. First one is, you might think that it is your weakness, but in reality it is your strength. Second conclusion might be, if it is your weakness, जैसे कपिल के केस में, explore it and try to make it your strength. Third, and if it turns out to be the real weakness कि ये तो हो ही नहीं सकता, then play on your strengths. आपने 3 columns जो है, first column में strengths के बारे में भी लिखे हैं 3 points, play on your strengths. ठीक है. तो अभी तक हमने 2 सीक्रेट मंत्रास देखे. फर्स्ट, पावर ऑफ सिनर्जी. सेकेंड, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड सीक्रेट मंत्रा, दैट इज पावर ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को एक तरीके से आप देखो तो इंस्टाग्राम दिमाग में आता है, फेसबुक दिमाग में आता है, चैटिंग, स्क्रोलिंग, ये सारी चीजें दिमाग में आती है. बट ये एक सक्सेस मंत्रा इसलिए है क्योंकि अगर इसका पॉजिटिवली यूज करो तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये. ठीक है. सोशल मीडिया इज एन इन्वेस्टमेंट. सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट is an investment of valuable time and resources. Surround yourself with people who do not just support you and stay with you, but inform your thinking about ways to wow your online presence. Online presence की वजह से लोगों को jobs मिलने लग गई है, लोगों का business जो है वो flourish होने लग गया है. Extend learning opportunities, online classes and remote jobs. आज हम जलगांव में बैठ के सेशन पूरे वेस्टर्न रीजन में कंडक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. ऑनलाइन मोड्स वगैरह ये सब चीज से बहुत नॉर्मल हो गया है ये चीज. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सपोर्ट एजुकेटर्स इन वेरियस वेज, फ्रॉम शेयरिंग अनाउंसमेंट्स टू होल्डिंग लाइव लेक्चर्स. लाइव एग्जाम्पल्स अगर देखो तो बहुत सारे चैनल्स है. फॉर एग्जाम्पल कार्तिक दरबार, ये चैनल जो है ये आपको स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इसके अलावा कुशा कपिला इज अ लाइव एग्जाम्पल. ये अपना कंटेंट क्रिएट करते थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और जाकर के वो लैंड हुए फिल्म इंडस्ट्री में. सम मोर एग्जाम्पल्स आर बाबा का ढाबा. ये जो शॉप था ये रन नहीं होता था इतना अच्छे से. इन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इनका एडवर्टाइजमेंट किया और आज ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है. Many other Indian D2C brands have seen the power of social media marketing firsthand. For example, D2C skincare brand Mama Earth brand जो है ये अपना Instagram का नेटवर्क यूज करके ऑडियंस को टारगेट करे और इनका ब्रांड अवेयरनेस जो है वो इतना इंक्रीज किए, which resulted in a 25% increase in website traffic and now has over 1.5 million followers. Next example is D2C fashion brand Bewakoof used social media platforms like Instagram, Facebook and Twitter to connect with their target audience and drive sales.
resulting in a 45% increase in website traffic and now has over 1 million followers. Can you suggest some more examples? So this is an interactive session, okay? So you can participate in this session. Anyone? I want to add one more thing. Yeah. If you heard Anil Singhvi sir, CA Anil Singhvi, he is also saying in every seminar or webinar कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी और वो हिंदी में ही मास्टरी थी उनकी। Correct. और अभी भी देखो वो जहाँ जो भी चैनल में बोलते हैं या जो भी प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम में वो हिंदी में ही पूरी स्पीच देते हैं, हिंदी में ही डिबेट करते हैं, हिंदी में ही पैनल डिस्कशन करते हैं। तो बट कितने फेमस है? बराबर। तो रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ और उसको अपना कोर कॉम्पिटेंस बनाओ। Yes. एक बार कोशिश करो, अगर कुछ होता है तो, अगर अपने को पता है कि नहीं ये अपने लिए बेटर है तो फिर उसको एक्सेल करो, है ना? Anybody else wants to add something? अच्छा, अमृता चैट बहुत बॉक्स में देखो, चैट हाँ, बॉक्स में बहुत लिखा है। सारे लोगों ने चैट बॉक्स में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखी है। एक बार हम प्रीवियस पॉइंट पे वापस आते हैं फिर। एक जन ने बोला है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, गुड प्लानर है। तो उनको अपने ये स्किल्स को और डेवलप करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे वो चीज पे वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, वीक कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये उनको अपना स्ट्रेंथ से बढ़ाना चाहिए और बाकी लोगों को सिखाना भी चाहिए। वीकनेस लिखा है एक जन ने, नॉट अ गुड लिसनर। मैम, अगर आप ये सेशन सुन रहे हो तो आप ऑलरेडी एक अच्छे लिसनर बन चुके हो। नॉट गुड डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर अगर आप अच्छे नहीं हो तो ट्राई टू मेक सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज बना के देखो। एवरीडे लाइफ में डिसीजंस लेके देखो, स्टार्ट करो कौन सा कलर चूज करना है ये चीज से, फिर बड़े बड़े डिसीजंस पे आना, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग वाले डिसीजंस लेना। नॉट टेक्नोलॉजिकली अडॉप्टिव। तो इसके लिए तो बहुत सारे सेशंस होते हैं, आप अलग अलग सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना था पावर ऑफ सिनर्जी, सेकेंड पॉइंट था एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, और थर्ड पॉइंट था पावर ऑफ सोशल मीडिया। एक जन ने लिखा है देयर आर मेनी मोटिवेशनल चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम। ट्रू, बहुत सारे चैनल्स है इंस्टाग्राम पे जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। सीए स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, एसीसीए, सीएफए, सीपीए, यूपीएससी, एमपीएससी, ये सारी जो एग्जाम्स है ये बहुत टफ होती है। एक टाइम पे हम लोग को बहुत डर लग जाता है चीजों को फेस करने से, ठीक है? तभी ये चैनल्स जो है ये बहुत हेल्पफुल भी हो जाते हैं, ठीक है? तो यू कैन मेक गुड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बोथ वेज, बनाने में भी वीडियो और देखने में भी। नेक्स्ट इज, यही पॉइंट में, मेक हेल्दी कनेक्शंस एंड नॉट जस्ट फॉलोअर्स। जैसे कि हमने देखा 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स वगैरह, फॉलोअर्स होना बहुत जरूरी है, ट्रू, बट मेक हेल्दी कनेक्शन। सिर्फ फॉलोअर्स खरीद के बना रहे हो या फॉलोअर्स बनाने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, तो ये सही यूज नहीं होएगा सोशल मीडिया का। अगर आप हेल्दी कनेक्शंस बनाओगे तो इसमें सिनर्जी भी एक्सचेंज होएगी, प्लस आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप कोई अच्छे कैंडिडेट को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, करेक्ट? Let's start with the next secret mantra, and that is navigating uncertainty, the power of resilience and adaptability. Fourth success mantra. ये सक्सेस मंत्रा स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे।
ये वीडियो कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे देखा था. In this video, we can see that a mother kangaroo was carrying a baby kangaroo in her pouch. Suddenly, two predators came running towards them. Then the kangaroo ran as fast as she could for saving hers and her baby's life. उसके बाद क्या हुआ, एकदम से भागते भागते कैंगरू के पाउच से बेबी कैंगरू नीचे गिर गया. फिर एक प्रेडेटर मदर कैंगरू के पीछे भागा था, एक प्रेडेटर बेबी कैंगरू के पीछे. बट वो दोनों इतना तेज भागे कि लास्ट में दोनों बच गए. Moral of the story is that embracing change, like the kangaroo baby adapting to its sudden fall, we must learn to embrace change and navigate through unexpected circumstances with grace and resilience. लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत सडन है, जो हमने प्लान नहीं करी हुई है. तो अगर ऐसी चीजें आ जाती है, वी मस्ट लर्न टू एम्ब्रेस चेंज. ठीक है, और नेविगेट करो, डायरेक्शन दो उसको सही सर्कमस्टेंसेस में, सही जगह जाने के लिए. Second point is courage in adversity. Despite facing a daunting challenge, the kangaroo baby displayed unwavering courage and determination. Similarly, we can find strength within ourselves to confront and overcome obstacles in our path. जैसे कि दुबई में इतना तूफान आया था, पानी आया था, हेवी रेनफॉल आया था, इतना सारा एडवर्सिटी था. उसमें दुबई के पुलिस ऑफिसर्स ने इतना करेज दिखाया, उन्होंने विद इन 1 वीक सब कुछ सही कर दिया. उधर के लोगों में भी करेज था. जब ये प्रॉब्लम चल रहा था, वो लोग रुके नहीं. उन लोग ने अलग अलग मोड्स डेवलप कर लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे ट्यूब में व्हीकल डाल के उसको पानी में से लेकर के जाना. तो करेज इन एडवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस जहां पे आपने करेज दिखाया है? Anybody wants to share? ठीक है, let's go to the next point. That Should is, pardon? Should I? Yes, yes, ma'am. I don't know कि मुझे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट इफ यू आर आस्किंग कि मैंने कहाँ करेज दिखाया है, then I can share my story. That I had diagnosis for cancer in 2020, and after that I went for my medication and all the treatments, and in 2021 I fought for WRC election. After my treatment completed in May 2021, and I declared my candidature on 1st July 2021. In a month, I declared my candidature for WRC election. Wow. So you can say it's a courage, or you can say it's a comeback, or I did this because I want to motivate myself. कि मतलब कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाता है. I am still can do anything. I request everybody to please put your hands together for her. Thank you, ma'am, for sharing your story. It was very courageous for you to stand for election even after surviving this deadly disease. Thank you, ma'am. Next point is independence and self-reliance. It's a reminder to take ownership of your actions and rely on our own capabilities in times of need. जो भी चीज कर रहे हो, जैसे मदर कैंगरू से
बेबी कैंगरू गलती से छूट गया था, उधर पे बेबी कैंगरू ब्लेम नहीं कर सकता था मदर कैंगरू को, ठीक है। उसने तुरंत ओनरशिप लिया वो चीज का, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और अपने कैपेबिलिटीज पे रिलाई करके फाइट बैक किया। सो डू नॉट वेट फॉर एनीबॉडी और ब्लेम एनीबॉडी, कोई भी चीज हो, टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन एक्शंस और अपने कैपेबिलिटी पे बहुत भरोसा रखो। हमको पता भी नहीं होता है हमारे अंदर कितना पोटेंशियल होता है जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेक श्योर आप वो प्रॉब्लम का वेट नहीं करो, बट अपना पोटेंशियल जिधर जिधर दिखा सकते हो दिखाओ। इसके ऊपर अमृता एक अपने एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। कल हनुमान जयंती आई है, हाँ तो यदि आप लोगों को आपने हनुमान जी के बारे में पढ़ा होगा, तो हनुमान जी की एक स्टोरी है कि हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि उनमें बल है और वो छलांग लगा के एक छलांग में ही समुद्र पार करके जा सकते हैं। तो उनके अंदर पोटेंशियल था, बट बराबर, उन्हें पता ही नहीं था कि वो उतनी दूर छलांग लगा सकते हैं। करेक्ट। तो उन्हें थर्ड पर्सन एक किसी को, राम जी को और किसी को याद दिलाना पड़ा कि नहीं, तुम में ये पोटेंशियल है और तुम एक छलांग में पार करके उधर लंका जा सकते हो। तो ऐसे ही राम जी कभी कभी हमारे लाइफ में आ सकते हैं, जो करेक्ट। हमको बताए कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है। या कभी कभी हार्ड टाइम्स इसीलिए आते हैं ताकि भगवान जी अपने अंदर से अपना पोटेंशियल निकाल पाए। और कभी कभी हमको खुद पे भी फेथ रख के, अपना पोटेंशियल पे फेथ रख के कोई चीज ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। No, Amrita is not Hanuman ji for us. Amrita is Ram ji for us. He's reminding Thank you, that we ma'am. have potential and we should do. Thank you, ma'am. Next point is never give up attitude despite the odds. ये तो हम सीए स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से देख चुके हैं। Never give up attitude. Despite the odds, the kangaroo baby refused to give up. It ran and ran in the face of danger, demonstrating the importance of never losing hope, even the toughest times. See, कभी कभी हमको पता नहीं है हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग को गोल पता है, उधर तक पहुंचना है, ठीक है। वे अलग अलग हो सकते हैं, बट एटीट्यूड जो है हमारा वो नेवर गिव अप वाला होना चाहिए। वी शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। एक चीज फेल होएगा, दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करो, दूसरा ट्राई करो, दूसरा चीज फेल होएगा, तीसरा करो। वेज बहुत सारे हैं, गोल्स भी आप चेंज कर सकते हो, बट गिव अप मत करना कभी, ठीक है। सो दिस पॉइंट वाज नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी, द पावर ऑफ रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट था पावर ऑफ सिनर्जी, सेकंड पॉइंट था, कोई बताना चाहेगा? आप लोग सुन रहे हो ना? एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट था पावर ऑफ सोशल मीडिया। फोर्थ पॉइंट है नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी, द पावर ऑफ रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। फिफ्थ सीक्रेट मंत्रा ऑफ सक्सेस इज क्वांटिफाई योर डेटा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया मेरे बिजनेस में, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? आपका आंसर रहेगा नो। हेलो, हेलो। कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या? अगर मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही हूँ और आपको पूछती हूँ कि आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। पर अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट इज 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 300 करोड़, and if I give you the asset liability ratio and other data, then you might think of investing, है ना। Similarly, Shark Tank इंडिया में अगर आप देखो तो स्टार्ट में द फाउंडर्स start में they ask the founders about their business models, but then they take decisions only after understanding the numbers. जब भी आप लोग फाइनेंशियल डेटा का ड्यू डिलिजेंस करते हो, तब आपको रिलायबिलिटी कोई भी बिजनेस पे, कोई भी काम पे ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने शार्क टैंक इंडिया का एग्जाम्पल देखा, बहुत सारी डील्स ऐसी होती है जो बहुत अच्छी लगती है, हमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है,
बट उनके फाइनेंशियल फिगर्स नंबर्स देख के हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत लॉस में है, या आगे जाके ये किधर ना किधर तो बिगड़ेगा डील, ठीक है। तो व्हाट मेड द डिफरेंस इन द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग? आंसर इज नंबर्स। जब हम नंबर्स देखते हैं हमारे आंखों के सामने, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। बिना नंबर्स के अगर मैं आपको चीजें बताऊं कि बहुत सारा प्रॉफिट है, तो इतना रिलाई नहीं कर पाओगे आप कोई बिजनेस पे, क्योंकि बहुत सारा इज अ सब्जेक्टिव टर्म। किसी के लिए 100 रुपया दिन का बहुत सारा हो सकता है, किसी के लिए 100 करोड़ रुपया बहुत सारा हो सकता है। तो डिफरेंस इज नंबर्स। हमेशा आपके डेटा को क्वांटिफाई करो, ठीक है। So, what we understand from this is quantifying data to make a significant impact, especially in business context. It provides clarity and allows for better decision making. Whether you are pitching an idea on Shark Tank or discussing financials with potential investors, numbers speak volumes. By presenting concrete figures such as gross profit, net profit, after tax, and asset liability ratio, you provide a clearer picture of your business's financial health and potential for growth. Investors are more likely to take interest when they see solid numbers backing up your claims. Quantifying data isn't just limiting to big financial metrics either. Even in day-to-day tasks, assigning numerical values or setting measurable goals can enhance productivity and accountability. It helps track progress, identify areas for improvement, and ultimately achieve better results. Lastly, अगर एग्जाम्पल हम लोग शेयर करें, तो अगर कुछ लोग हाइकिंग के ट्रिप पे जाना चाहे, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल अगर सोचे कि हमको है ना ट्रिप के लिए जाना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले प्लान करोगे कोई अच्छी सी जगह पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप सिलेक्ट करोगे कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। फिर लास्ट में 3 चीजें आप देखते हो: बजट एलोकेशन, फाइनलाइजिंग द डेट्स फाइनलाइज करोगे, बजट्स बनाओगे अलग अलग, और लास्ट है मेजरिंग डिस्टेंस एंड रूट प्लानिंग। ये सब नंबर्स में खेल लिया आप। जब नंबर्स आएंगे तब आपको घर से परमिशन मिलेगा, या आप खुद को भी लगेगा कि हाँ हमको अभी बाहर जाना है, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिजनेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्ले विथ नंबर्स। 5 सीक्रेट मंत्रास एक बार हम स्टार्ट से वापस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग को अगर कुछ ऐड करना है तो हम लोग ऐड करके सिनर्जीज एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। First secret mantra was power of synergy, correct? तो ये सीक्रेट मंत्रा पे let us perform some activity. अच्छा, चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन है, मैं रीड करती हूँ एक बार। I can totally relate, एक जन ने लिखा है, with this point I never realized how much I used to spend until I decided to track them. That is quantify the data. Exactly. जब आप देखोगे नंबर्स में कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, तभी वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होएगा, करेक्ट। फिर किसी ने पूछा है, व्हाट इफ माय बिजनेस इज अ स्टार्टअप एंड आई डोंट हैव इनफ नंबर्स टू क्वांटिफाई, बट माय बिजनेस आइडिया इज अमेजिंग, हाउ शुड आई टर्न इट इनटू सक्सेस? सी, आप ऐसा कर सकते हो, या तो प्रेडिक्ट करो, फोरकास्ट करो, या तो
कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ जो आपको बिजनेस प्लान डिजाइन करके दे, ठीक है? आई होप यू गॉट योर आंसर. Divya ma'am, are you trying to say something? No, I'm not trying to say anything. Okay. So let us come towards our first secret mantra again. That was power of synergy. पावर ऑफ सिनर्जी में हमने क्या देखा था? हम बहुत सारी जो एनर्जीज है एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, करेक्ट? I would request each and everyone to share one unique quality of theirs. प्लीज सब अपना अपना एक एक क्वालिटी चैट बॉक्स में डालेंगे. बहुत सारे लोगों ने अपना स्पेशल क्वालिटी लिखा है. एक जन ने लिखा है गुड इन कोलैबोरेशन. मैम कुड यू प्लीज शेयर कि आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो? वेज टू कोलैबोरेट. श्वेता मैम. It's an interactive session, so we can exchange the Whether- synergies. Whether she can unmute herself. Could you please unmute yourself? Shweta Lohia ma'am. ठीक है, हम लोग ये पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं. गुड इन कोलैबोरेशन. कोलैबोरेट आप कैसे कर सकते हो? अगर आप इंडिविजुअली जाते हो कोई चीज करने के लिए, ऑडियंस आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा जितने आपके नोन लोग हैं उतने पे, ठीक है? बट आप किसी और के साथ कोलैबोरेट करते हो तो उनका ऑडियंस और आपका ऑडियंस दोनों कोलैब कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होएगा? कुछ न्यू चैनल ऑफ ऑडियंस भी जनरेट हो सकता है, ठीक है? तो कोलैबोरेशन में इतना पावर है. लैक्मे जो ब्रांड है, ये अपने कॉस्मेटिक्स जो है ये खुद भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे, बट इन्होंने जो एक्ट्रेसेस है उनके साथ कोलैब किया क्योंकि उनके एक सेट ऑफ ऑडियंस है, ठीक है? एक सेट ऑफ फैंस है जो कि उनको फॉलो करते हैं. तो कोलैबोरेशन से ये बेनिफिट होता है. उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे, हम लोग जो है हमारा बिजनेस जो है, हमारे रील्स जो है वो तो इंडिविजुअली डाल सकते हैं, बट किसी के साथ कोलैब करके भी डालने से ऑडियंस का रीच बढ़ता है. तो कोलैबोरेशन से ये सिनर्जी हमको मिलता है, करेक्ट? फिर किसी ने लिखा है कोडिंग. कोडिंग उनका पावर है या कोडिंग उनका कोर कॉम्पिटेंस है. अगर वो ये कोडिंग जो है किसी के साथ में मिलके यूज करे, जिनके पास मार्केटिंग का नॉलेज है, जिनके पास फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का नॉलेज है, जिनके पास टैक्सेशन का नॉलेज है, तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें टैक्सेशन भी, टैक्सेशन का जो ऑडिटिंग जो है या उसका जो कुछ फॉर्मेलिटीज है, कंप्लायंस वर्क जो है, ये सिस्टम पे ही हो जाए, है ना? टीम लीडर, किसी का स्पेशल क्वालिटी है टीम लीडर.
टीम लीडर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, एक होता है ट्रांजैक्शनल। दोनों तरीके सही है। टीम लीडर का जो फर्स्ट तरीका था ट्रांसफॉर्मेशनल, ये एंथुजियाज्म क्रिएट करता है टीम में और सब लोग को इंस्पायर करता है काम करने के लिए। तो लीडरशिप का ये क्वालिटी हो सकता है कि सब लोग को एंथुजियाज्म जो है सब लोग में क्रिएट करो, सब लोग को वे दिखाओ, सब लोग के साथ में काम करो मिलजुल के, ठीक है। दूसरा वे है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल वे ऑफ लीडरशिप इज रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज वाला सिस्टम लगा दो। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप सेट कर दो, ये टाइम पे आओगे तो सही रहेगा, नहीं आओगे तो आपको पेनल्टी लगेगा, 1 मंथ आप इस पे आओगे तो 3 डेज का पेड लीव्स मिलेगा, ठीक है। तो लीडरशिप के अलग अलग रोल्स है। फिर किसी ने लिखा है हाउ टू राइटली कम्युनिकेट योर आइडियाज। अच्छा, हाउ टू राइटली, एक जन का डाउट है, हाउ टू राइटली कम्युनिकेट योर आइडियाज व्हेन यू लैक द कॉन्फिडेंस टू एड्रेस द क्राउड। वेरी गुड क्वेश्चन। छोटा छोटा स्टेप लो, जब कोई चीज बड़ा से नहीं हो पाए, मैकडोनलाइजेशन इफेक्ट इसको कहते हैं। बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करो, छोटे टुकड़ों पे काम करो, अगर वो तरीका आपका चल जाए तो वो चीज सब पे एड्रेस करो। अगर आप क्राउड को एड्रेस नहीं कर पा रहे हो एकदम से, 2-3 लोगों के सामने बोलने का कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलने का कोशिश करो, ठीक है। जो लोग सपोर्टिव है उनके सामने से स्टार्ट करो, फिर जो लोग थोड़े नॉन सपोर्टिव है, अगर आप की बातों में सेंस बनता है तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए आजकल, तो लिंक्डइन बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट करता है लोगों के लिए, उधर आप आपके आइडियाज पुट कर सकते हो, वीडियोस बना के डाल सकते हो। नेक्स्ट है मैम प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन वन एक्सप्लोर देयर ट्रू पोटेंशियल। ट्रू पोटेंशियल जो है, या तो हमको कभी कभी पोटेंशियल अपना पता होता है, हम उसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं, या तो कभी कभी हमको अपना पोटेंशियल पता नहीं होता है। तो ट्राई करते जाओ, आपका पैशन किधर जाता है उसको फॉलो करो, अलग अलग चैलेंजेस खुद को देके ट्राई करो। अगर एक टाइम पे आपका ऐसा हो जाता है कि और प्रॉब्लम आ रहा है, और चीजें और वे आउट्स निकाल के देखो, तो आपका पोटेंशियल अपने आप बाहर आएगा। किसी को और कुछ ऐड करना है ये पॉइंट में? सो द फर्स्ट पॉइंट वाज पावर ऑफ सिनर्जी। पावर ऑफ सिनर्जी में हमने देखा था कोलैबोरेट करो लोगों के साथ में, ताकि आपका ट्रू पोटेंशियल जो है वो बाहर निकले। ट्रू पोटेंशियल का ये भी एक आंसर हो गया, कोलैबोरेट करके देखो। जो लाइक माइंडेड लोग हैं एक साथ आके काम कर सकते हैं। जब आप एज अ टीम काम करोगे ना, आप आपका आइडिया अपने आप पुट करोगे, सामने वाला कोई क्वेश्चन करेगा, आप आंसर करोगे। कभी कभी हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे माइंड में वो चीज का आंसर है। जब भी आप आंसर करते हो या फॉर्मेशन होता है, तभी हमारा ट्रू पोटेंशियल अपने आप अनलॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पॉइंट हमारा इसी के साथ कवर हो गया, एक्सप्लोर योर ट्रू पोटेंशियल। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी। सी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग क्या करते हैं ना, राइट मोमेंट के लिए वेट करते हैं कि जब ये हो जाएगा ना तब मैं वो चीज करूंगी या करूंगा। राइट मोमेंट आज है, अभी है। संत कबीर ने जो श्लोक बोला है बहुत ही रिलेटेबल है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवे बहुरी करे कब। मतलब प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो अवॉइड करो, अपॉर्चुनिटी जब भी जो भी आए ग्रैब करो। ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं होएगा वो चीज, और क्या होएगा, आज तो वैसे भी आप नहीं कर रहे थे, करेक्ट। तो ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी। बीइंग अडेप्टिव भी इसमें हमने देखा, चेंजेस बहुत सारे एनवायरमेंट में होंगे, बट वी हैव टू बी अडेप्टिव, ठीक है। एक तो अडेप्टिव होना चाहिए आपको, मतलब आप प्रोएक्टिव हो गए। दूसरा हो गया रिएक्टिव, अगर कोई चीज आपका हो जाता है तो आपको उस पर रिएक्ट करने भी आना चाहिए, करेक्ट। थर्ड पॉइंट था पावर ऑफ सोशल मीडिया। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू ऑल
टू क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट, और प्लीज उसको एक्टिवली हैंडल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, इंस्टाग्राम का अगर आप सही से यूज करो तो वो भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। ट्राई करो, छोटा छोटा रील बना के, पोस्ट बना के, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख के पोस्ट करो, छोटा छोटा राइटिंग्स करो। ठीक है, जो भी आपका पैशन बोलता है, जो भी आप जिसमें स्पेशलाइज करते हो, चीजें शेयर करो। शेयर करने से आपका चीज कम नहीं होएगा, उल्टा बढ़ेगा। अगर 10 लोगों को भी आप लाइफ में हेल्प कर सकते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लस वो 10 लोग आगे और हेल्प करेंगे और आपको भी किसी से हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो सब लोग अपना लिंक्डइन अकाउंट प्लीज प्लीज बनाइए और बाकी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी, द पावर ऑफ रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। हमने ये पॉइंट भी एक वीडियो के थ्रू देखा था, जिसमें मदर कैंगरू बेबी कैंगरू थे, कैरी कर रहे थे, फिर वो गिर गया था, फिर उसने रन करके खुद की जान बचाया और सब कुछ किया था। तो अनसर्टेनिटी को नेविगेट करो, मतलब हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे पास आई, वो हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। जैसे मैम ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट उन्होंने इतना अच्छे से कम बैक किया, वो चीज को अपना वीकनेस नहीं बना के स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करा, कि अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो उससे ओवरकम करके वो चीज से बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, उसके बाद में भी ये प्लेटफॉर्म पे रीच करना और इतना सबको मोटिवेट करना और आगे बढ़ाना, ये अलग चीज है। तो ये हमको इनसे भी सीख सकते हैं हम ये चीज। ठीक है, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस पे? लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमने देखा था क्वांटिफाई योर डेटा, प्ले विथ नंबर्स। हमने देखा कि बहुत सी बार हम जब ऐसे ही बात करते हैं बिना नंबर्स के, तो इम्पैक्ट इतना क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम टेबल पे नंबर्स लेके आएंगे, फाइनेंशियल डेटा लेके आएंगे, तब अपने आप जो इम्पैक्ट है वो आपका क्रिएट होएगा। जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनमें ये क्वालिटी पहले से होता है, क्योंकि वो लोग नंबर्स में ही खेलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नंबर्स में प्ले करते हैं बट पिक्चर के पीछे। तो मेक श्योर ये आप आगे भी लेकर के आओ। ठीक है, अच्छा, एक जन का क्वेश्चन आया है कि ये 5 सीक्रेट मंत्रास विमेन के लिए कैसे यूजफुल रहेंगे। तो इसको आंसर करते हैं हम लोग। अगर आप सिनर्जी जो है क्रिएट करोगे, जो हमने देखा यही 5 पॉइंट्स और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स लेकर के आते हैं। जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज है ना देखा गया है कि गॉसिपिंग, उसके अलावा पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें बहुत सी होती है। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें भी बहुत सी होती है, ग्रुपिज्म वगैरह, जिसमें बहुत सारे लोग विमेन्स को ब्लेम करते हैं कि इनका टीम में होना फाइट का कारण हो सकता है वगैरह। बट क्यों ना हम ये चीज को पूरा चेंज कर दे और हम लोग ही एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, ताकि हम अगर स्टार्ट करेंगे ये चेन तो बाकी सब भी एक साथ ऊपर जाएंगे। सोशल मीडिया विमेन जो है बहुत ही खुद को पीछे समझते हैं, सोचते हैं ठीक है यार इसमें हम क्यों डालेंगे, क्या डालेंगे वगैरह। तो ये चीज भी आप कर सकते हो कि एज सच सब इक्वल है, तो खुद को डिफरेंशिएट ना करो, उल्टा अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो भी थिंकिंग है, अपना जो भी है वर्किंग्स, वो आप पोस्ट करो। उसके बारे में उसके बाद में विमेन्स के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, जो हम है ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है इन लोग कर लेंगे, कोई भी चीज है हम लोग बाद में देखेंगे। बट क्यों, आप लोग पहले से स्टार्ट करो चीजें करना। करेक्ट, आप में भी उतना इक्वल पोटेंशियल है। हम लोग कभी कभी खुद को ही कम समझते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है मेन जो है खुद को ऊपर समझ रहा है।
बट ट्रू सेंस में हम लोग खुद को नीचे समझ रहे हैं। तो ये जो गैप है, वाइबिलिटी गैप, ये खुद रिड्यूस करके आप ऊपर लेके आइए, तो आपको ये जो सीक्रेट मंत्रास है वो हमेशा काम में आएंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, विच अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट मंत्रा अमंग द 5 मंत्रास दैट यू शेयर। इस पे आप लोग भी आंसर कर सकते हो, आपको कौन सा सीक्रेट मंत्रा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आई वुड रिक्वेस्ट दी अटेंडीज सब अपना अपना वोट डाले। पांच लोगों का आया है, सारे लोगों का आना चाहिए, ठीक है। वेरी नाइस, वाओ। किसी को लगता है फोर्थ बहुत अच्छा है, तो किसी को लगता है सारे ही एक साथ जाते हैं, करेक्ट। किसी को फर्स्ट अच्छा लगा। आई थिंक सीक्रेट मंत्रा फॉर एवरी इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट, बिकॉज व्हाट्स अ स्ट्रेंथ फॉर वन मे बी अ वीकनेस फॉर अदर एंड वाइस वर्सा, ट्रू। बट हम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो हमारा सीक्रेट मंत्रा हमारा सक्सेस पॉइंट हो सकता है। सेकेंड, वी वॉन्ट टू नो योर्स, ओके। My favorite secret mantra is power of synergy and explore your potential, क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो हम लोग नहीं करते एक्सप्लोर। सेकेंड, ओके। एक जन ने शेयर किया है कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग एवरी डे। ये भी 6th मंत्र हमारे पास हो गया बोनस। कंसिस्टेंसी इज द की। जो आप चीज कर रहे हो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करोगे तो 21 डेज में तो हमारा वो हैबिट हो जाता है। तो उसके बाद में भी अगर वो चीज आप करोगे, पूरा 1 साल अगर वो आप फॉलो करते हो, तो आप तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली द की। नेक्स्ट इज लर्निंग एवरी डे। बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे अपडेट्स आ गए हैं, रादर अपग्रेड्स आ गए हैं चीजों में। तो लर्निंग एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो एक्ट में हो, फिर वो टेक्नोलॉजी में हो, फिर वो लॉ में हो, फिर वो अकाउंटिंग में हो, या कोई और चीज में क्यों ना हो। Unlearning is also equally important to get rid of redundant practices. Very well said. Unlearning is equally important. जब आप लर्न कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें अमेंड होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। तो जो चीज पुरानी हो गई है वो चीज को अनलर्न करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे हम पहले व्हाट्सएप नहीं था जब भी तो मैसेजेस करते थे, बट व्हाट्सएप आने के बाद हम व्हाट्सएप का यूज करने लग गए, तो मैसेजिंग जो है वो रिड्यूस हो गया। उसको आप अनलर्न करके नया चीज लेकर के आ रहे हो। वैसे ही जब जैसे सर्विस टैक्स था, फिर जीएसटी आया, तो सर्विस टैक्स को हमको अनलर्न करना पड़ा जीएसटी समझने के लिए।
दिव्या मैम आप कुछ बोल रहे थे? आप लोग शेयर करना चाहते हो कोई और पॉइंट्स? ठीक है, तो आंसर कर दो। 2 + 2 = 5, करेक्ट। उसके अलावा हम अभी क्या करेंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रखने का ट्राई करेंगे। हम जहाँ हो सकता है, जहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं लोगों के साथ में चीजें शेयर करो, नॉलेज शेयर करो, ये सब चीजें शेयर करने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स, गॉसिपिंग, इंडिविजुअल ग्रुप्स, कंपटीशन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे। और नॉर्मलाइज किस चीजों को करेंगे, हेल्दी ग्रोथ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उसके बाद में एक दूसरे की हेल्प करना, सेलिब्रेट टुगेदर। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग जो आप लोग कर रहे हो। ठीक है, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। हमको रोबोट से ये पॉइंट जो है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है। हम लोग के पास एबिलिटी है कि हम हमारे इमोशंस जो है वो रन कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। तो लेट्स मेंटेन दैट और उसको उल्टा इनकलकेट करो अपने प्लानिंग में। इसके अलावा रिस्पेक्ट करो लोगों के आइडियाज को, उनके इंटेंशंस को। जैसे हम लोग इधर पे सबकी आइडियाज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके इंटेंशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट तो अभी तक नहीं हुआ, बट अगर होता है कोई फर्म में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका टीम ऐसा मेंटेन करो कि जो फाइट को और बढ़ावा नहीं दे, रादर सॉल्व करे। फीडबैक का जो पॉइंट था, ओपन है ये चीज, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए, यू कैन शेयर योर फीडबैक। उसके अलावा आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उसको संभाल के रखना, उसको और आगे बढ़ाना। जो वीकनेसेस है उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करो स्ट्रेंथ में, अगर होता है तो समझो वो आपका सच में वीकनेस है, या परस्यू करके देखो, एक्सप्लोर करके देखो, वो हो सकता है आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तीसरा चीज, अगर सच में वो आपका वीकनेस है, छोड़ दो, स्ट्रेंथ जो है उस पर हम लोग रन करेंगे। जैसे मैम ने एक एग्जाम्पल बताया था, एक जन है जिनका वीकनेस नहीं बोलेंगे हम, बट स्ट्रेंथ है हिंदी स्पीकिंग, तो वो उसमें परस्यू कर रहे हैं आगे। पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये भी हमने डिस्कस किया कि सब अपना अपना अकाउंट्स बनाएंगे अभी सब जगह पे। एज लिमिट नहीं होना चाहिए, बैरियर जो है विमेन मैन, ये बैरियर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब अपना अपना ओपन करो, जो कर सकते हो वो कोशिश करो। मेक हेल्दी कनेक्शंस, ये भी हमने देखा। ठीक है, वी आर समराइजिंग कि हेल्दी कनेक्शंस बनाओ, और सिर्फ फॉलोअर्स मत बनाओ। फिर लास्ट में हमने लास्ट सेकंड पॉइंट हमने देखा, नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन ढूंढो, पहले तो काम रहना, फिर सोल्यूशन ढूंढना। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्वांटिफाई योर डेटा, प्ले विथ नंबर्स। ठीक है, चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारा डेटा आया है अभी। थैंक यू सो मच। हाउ डिड आई लर्न अबाउट दिस? एक्सपीरियंस टेल्स इट ऑल मैम। बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं, बट आई फील जिसके लाइफ में जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, वैसे वैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं और अपने आप लर्न करते हैं।
Thank you. The question, how can we pick ourselves up after back-to-back failures? एक के बाद एक फेलियर के बाद आप खुद को कैसे पिक कर सकते हो? तो फेलियर जो है, ये फेलियर नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली, ठीक है? फेलियर से उल्टा आप और ऊपर जाते हो, और वो चीज का वैल्यू एक तो आपको पता चलता है, दूसरा चीज आपको ये पता चलता है कि कौन से तरीकों से ये चीज नहीं होने वाला है, ठीक है? So we have to remain positive always. Yes. Ma'am, would you like to share anything? No, it was a great session actually. Chalo. Thank you so much. And it was so much interactive. I can see the chat box. It's full of messages and responses. So it's quite interactive session. I also equally enjoyed the session. Thank you so much for active listening. Yeah. So yeah, it's a very good remark, ma'am. I love your teaching style. So, अभी क्या है ना, अमृता इतनी छोटी है, उसको कोई मैम बोल रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, अरे ये मैम लायक है क्या? अभी तो छोटी सी है. बट नो, टीचर छोटे भी टीचर होते हैं, अच्छे होते हैं. Breaking all the barriers, ma'am. Yeah, actually. So if anyone have any other question or they want to ask any question from Amrita, please put your in chat box or Q&A session. Amrita, have you checked the question and answer section? Yeah, ma'am. We've answered everything, I guess. Okay. Yeah, there are many things to learn from younger generation. It's correct. So if nobody have any question, we can ask Divya from Amravati to give her formal vote of thanks. Yes. Hi everyone. I am CA Divya Prem Trikoti from Amravati. As mentioned by Pinky ma'am, I am Secretary of Amravati branch. I would also like to extend my thanks to today's faculty CA Amrita Manihar. Today your session was very interactive. As you can see the responses from audience also. I hope each and every attendee has taken takeaways from it. Your session was very good, and even after hearing, I was also of the same opinion that you are of such a small age, and you have put in your inputs were such that which does not match with your age. So that's great. So congratulations on that, on successful completion of today's session, Amrita. We would like to have you again, taking up another some topic and enlightening us with your knowledge. So I heartily welcome and thank you, Amrita, for today's session. I would also like to thank Pinky Kedia ma'am for taking up this session under WOW series, and also WRC ICI for this session. So thank you very much, and I special thanks to all the attendees for coming and attending this session. Hope that all the attendees will come every Wednesday to attend this WOW session series with another faculty on another Wednesday. So thank you. Thank you. Again, Amrita. I want to inform you all that we had launched one initiative, Punashya. In Punashya, we are taking care of that thing what Amrita was saying. कि यदि पुनश्च का मीनिंग वही है कि कम बैक, तो जो भी सबैटिकल या मैटरनिटी लीव से या किसी भी वजह से उन्होंने गैप लिया हुआ है और वो प्रोफेशन से या सब्जेक्ट मैटर से बहुत दिनों तक अलग रहे, so they can take part in that. So go through our WRC website. In that you can get that initiative and what we are taking in that initiative. You can come to know. And what she was saying कि confidence level or public speaking and all these things required. So if any of you want to be a speaker or coordinator in our WOW series or in any of the seminar, webinar,
please message me or contact me. I am giving my email ID and my mobile number in chat box. So if you want, or there is a one section in our WIRC website, my role at WIRC. In that also you can submit form that whether you want to be a faculty or you want to be a coordinator, or if you want to be joined in any other way from WIRC with WIRC. So you can fill that form. We will connect you, and we will give you the chance to connect with us. And we need more and more people and females to active in our WIRC. So please fill the form for my role at WIRC. This is my email ID and mobile number. So you can send on this also. So in next seminar or webinar, we can contact you. And if you want to be a faculty for any topic, please message me the topic and your name. So we will we will do the needful and we will contact you. So thank you again, Divya, to take time to and